मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, ईद उल फितर के मौके पर आप तमाम को रोशनी टीवी की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا، مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے خدا کے واسطے کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں، مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ لاک ڈاؤن کے رعایتی وقت میں کاروبار کھلے عام، لیکن نماز عید کے لیے مساجد و عیدگاہ پر پیش سے عوام نے کی گھروں میں نماز عید ادا۔ ملک کی ترقی کے لیے کورونا وبا کے خاتمے کے لیے کی گئی دعائیں۔ کورونا کے قہر میں بھی چند نادان نہیں سدھرے۔ بھیم گل میں عید کے دن مسلمانوں کا دل آزاری کے لیے سوشل میڈیا پر توہین آمیز پوسٹ، مقامی قائدین کی جانب سے محکمہ پولیس کی شکایت درج، وہ سخت سے سخت کارروائی کی اپیل۔ عید الفطر کے موقع پر ریاستی وزیر اعلیٰ KCR، اسمبلی اسپیکر پوچرام، ریاستی وزیر پرشانت ریڈی، PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی، MLC کے کویتا، رکن اسمبلی شکیل عامر و دیگر نے دی مبارکباد۔ عید کے مبارک موقع پر جمعیت العلماء نظام آباد کی جانب سے محکمہ پولیس ملازمین میں شیر خورمے کی تقسیم و ان کی بے لوث خدمات کی ستائش۔ کورونا وبا کے مد نظر پیش آئے حالات پر ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے عہدیداروں کے ساتھ کیا تبادلہ خیال۔ رخ قائم تفصیل کی جانب۔ عید الفطر دراصل نام ہے عملی مظاہرے کا۔ عالم اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کلمہ گو کے لیے خوشی و مسرت کے 2 دن متعین کیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کا لفظ عود سے بنا ہے جس کے معنی لوٹ آنا ہے، اس لیے ہر سال ہم خوش نصیب امتیوں کے لیے یہ 2 دن لوٹ آتے ہیں۔ اسی مناسب سے عید کو عید سعید بھی کہا گیا ہے۔ ان دونوں عیدوں میں سے ایک کے ساتھ الفطر اور دوسرے کے ساتھ الاضحیٰ کو جوڑ دیا گیا ہے۔ فطر کے معنی لغت میں روزہ کشائی کی ہے۔ چونکہ رمضان مبارک کے متبرک ماہ میں ہم اور آپ ایک ماہ تک صوم و صلات کی تکمیل انتہائی پابندیوں اور صبر و استقلال سے کرتے ہیں اور کامل ایک ماہ کے بعد پہلا دن عید کا ہوتا ہے، اسی لیے اس دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے تہواروں میں جہاں خوشی و مسرت کے جلوے نظر آتے ہیں، وہیں اپنے پروردگار عالم کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کے پہلو بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس دور میں اہل مدینہ دور جہالت سے ہی سال میں 2 دن خوشی مناتے تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے بجائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل مدینہ کو خوشی منانے کا حکم فرمایا، کیونکہ اس عید سعید کے دن خدا کا بندہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، بندے کا قلب جذبہ تشکر سے بھر جاتا ہے اور اس کا سر اللہ رب العزت کی کبریائی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے، کیونکہ عید الفطر کا جشن روزوں سے متعلق ہے، لہٰذا پہلی عید رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں اور فیض پانے والوں کی ہجرت کے دوسرے سال ہی منائی۔ اس وقت سے آج تک عید کی خوشیاں منانے کا سلسلہ جاری ہے اور ساری دنیا کے مسلمان عید سعید ایک خاص جذبے کے تحت مناتے ہیں۔ عید الفطر جو مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے، وہ صرف رمضان المبارک میں روزوں سے فارغ ہونے کی خوشی اور عالم اسلام کی پہلی عظیم فتح کی بھی یادگار ہے۔ اس مبارک و مسعود مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطری قانون عطا فرمایا، جس سے استفادہ کر کے انسانیت نے ایک
अब्दी शमा रोशन की। इस ईद के सदक़े कोरोना वबा के खात्मे फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में दुआ करे सदर ईदगाह कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल की अपील। इनकी अमामत व सदारत में हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर ईदगाह मदीना में नमाज ईद अदा की गई। कोरोना वबा के सबब रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक और मुतहदा ज़िले की तमाम ईदगाहों में सिर्फ ईदगाह कमेटी के गिने चुने अफराद ने नमाज ईद अदा की। इस तरह शहर की अहम ईदगाह मदीना में सदर कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने अमामत की फ़राइज़ अंजाम दिए और इनके हमरा नौजवानों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर सदर ईदगाह कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने अवाम से अपील की कि वो ईद के इस मुबारक मौके के सदक़े इस दुनिया से कोरोना वबा के खात्मे वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। इस तरह हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमल आवारी करें। आज जहां पर लॉकडाउन के रूल्स के हिसाब से सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान तमाम कारोबार बेखौफ होकर जारी रहें, वहीं पर ईद के मौके पे भी मुसलमान नमाज ईद अदा करने के लिए तड़पते हुए नज़र आए। आज जो ईद गुज़री है शायद इस तरह से गुज़री है अदा भी ना किया जा सका, ना मुकम्मल किया जा सका। आज हमने भी नमाज ईद यहाँ पर शहर के मरकज़ी ईदगाह मदीना में अदा की। हमारे साथ इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं यहाँ पर मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब हैं, सदर कमेटी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि उसने ईद जैसी नेमत अता फरमाई। और आज इस वक्त और दिनों में यह आलम होता था कि पूरा मजमा हज़ारों की तादाद में जोश व खरोश के साथ पूरे एहतशाम के साथ यहाँ ईदगाह आता और हज़ारों का मजमा रब की बारगाह में सुजूद नियाज़ लुटाता हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ कि उसने रमज़ान अता किया, उसने ईद अता की और इस सौगात इस तोहफ़े के साथ वापस भी जाता। और मगर आज ऐसे हालात हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हर जगह लोग अपने अपने मुकाम पर अपनी रब की इबादत में मसरूफ़ हैं और खुशियों का भी बड़ा अजीब आलम है कि चाहते हुए भी हम खुशियों का इजहार एक दूसरे से नहीं कर सक रहे हैं। ना मुसाफहा है, ना मुआनका है, ना मिलना है, ना जुलना है। मगर उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि आज जिस तरह हमने अदा की है, इबादत की है, उसी तरह हर रोज़ रब की इबादत करते रहें और उसकी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते रहें और पूरी दुनिया में खुशियाँ फैली हुई हों। फ़लस्तीन के मकाम पर जो मुसलमान परेशान हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें खुश रखे, उनके जानों की, उनके मालों की, उनकी इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत फरमाएँ। पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज़्ज़त व वक़ार के लिए हम दुआ कर रहे हैं रब की बारगाह में और पूरी दुनिया में अमन के लिए, सुकून के लिए दुआ कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा हो, कोरोना वायरस का। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान ईद उल फितर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान ने फर्जंदान तौहीद को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हमारा मुल्क कोरोना वायरस की दूसरी लहर से शदीद मुतासिर है। इन हालात में हम ईद मना रहे हैं और कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मुल्क से वबा के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि ईद इनाम इलाही का दिन है, नेज़ रमजान की इबादतों का समरा और इनाम है। इसका बदला बंदगान खुदा को खुशनौदी इलाही की सूरत में मिलता है। अहले इस्लाम ने इस मुक़द्दस माह में निज़ाम ज़कात के जरिए ज़रूरतमंदों की दिल खोल कर मदद की। इन्होंने कहा कि इस्लाम का निज़ाम इबादत जहां बंदों को खालिक से जोड़ता है, वही बंदों में फर्ज शनासी, बाहिमी इमदाद और एहसास जिम्मेदारी की कैफियत पैदा करता है। बैरिस्टर अवैसी ने पयाम ईद के आखिर में फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों से अपने गहरे क़ल्बी ताल्लुक़ का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गजा के मजलूम मुसलमानों ने अपने ज़ख्मी वजूद के साथ बारूद के धुएं के दरमियान नमाज ईद अदा की है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि क़द्दस सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों का मसला नहीं, ये तमाम आलम इस्लाम और तमाम इंसाफ पसंद असहाब का मसला है। मस्जिद अक्सा के बेहुरमती को रोकने के लिए मुतहद और मजबूत आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने अज़्म और हौसले के साथ कोविड का मुकाबला करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी जानिब से, अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम हज़रात को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और यकीनन हम बहुत ही नाजुक हालात से गुज़र रहे हैं
ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس کے کسی گھر والوں نے اپنے رشتہ دار کو کھویا ہے یا اپنے دوست کو کھویا ہے۔ تو یہ بڑا ہی عجیب و غریب وقت ہے، مگر ہم کو صبر سے، اپنی نمازوں سے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی دعا کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس وبا سے، اس وائرس سے ہم کو چھٹکارا دلائے، اور عید کو سادگی سے منائیے، کیونکہ پورا ہمارا وطن، ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا گاؤں، ہر فرد پریشان ہے۔ بلند رکن اسمبلی شکیل عامر کی جانب سے عوام کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی گئی۔ بلند رکن اسمبلی شکیل عامر نے اپنے بیان میں عید کے خلوص پرمسرت موقع پر تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید امن بھائی چارے کا دن ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے پروردگار کو کورونا وبا جیسی مہلک وبا کا فوری طور پر خاتمہ کرنے سے متعلق دعا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی اپیل کی۔ رمضان کووڈ-19 کے پروٹوکول کے تحت منانے کی خواہش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست تلنگانہ کے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام کی حفاظت کرے، ریاست تلنگانہ کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگوں کی اس کرونا وائرس کی وبا سے حفاظت کرے، اور جو اس سے متاثر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے۔ اس کے علاوہ میں ہمارے آنریبل چیف منسٹر عالی جناب KCR صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آج پورے ریاست تلنگانہ میں ہر مسجد میں الحمدللہ عید کی نماز بغیر کوئی پابندی کے ہر جگہ پڑھائی گئی، اور لوگ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے کرونا کے جو نارمس ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کیے ہیں۔ میں CM صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوئی سختی پولیس کی جانب سے یا کوئی دوسرے گورنمنٹ آفیشلز کی جانب سے نہیں ہوئی۔ الحمدللہ آپ تمام کو پھر دوبارہ عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ عید یعنی انعام کا دن ہے، اور آج کے دن عوام دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرے۔ عیدگاہ جدید سے صدر عیدگاہ کمیٹی افضل خان و صدر بیت المال یحییٰ ظفر کی عوام سے اپیل۔ آج سرپرست عیدگاہ کمیٹی و صدر بیت المال یحییٰ ظفر کی سرپرستی و صدر عیدگاہ قبرستان کمیٹی قدیم و جدید افضل خان کی صدارت میں عیدگاہ قدیم و جدید میں کورونا وبا کے سبب نافذ کردہ حکومت کی ہدایت کے مطابق نماز عید چنندہ افراد کے ساتھ ادا کی گئی۔ اس موقع پر مولانا عطیف نے امامت کے فرائض انجام دیے اور عید کا خطبہ دیا اور تمام عالم کے لیے دعائیں، اور اس عید کے صدقے میں ملک میں امن و امان و معاشی بحالی و کورونا کے خاتمے کے لیے دعائیں کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محمد راحل و دیگر موجود۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج عیدگاہ جدید واقع خلا شانتی نگر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ نے یحییٰ بھائی بجلی بیڑی جو کہ بیت المال کے صدر بھی ہیں اور ہمارے عیدگاہ کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، ان کی سرپرستی میں ہم نے آج عیدگاہ جدید میں شعار اسلام کو ادا کیا۔ چونکہ عیدگاہوں میں نماز عید ادا کرنا شعار اسلام ہے، علماء مفتیان اکرام کے مشورے پہ صوشل ڈسٹینس کے ساتھ 10 آدمیوں کی موجودگی میں جو عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، ہم نے یہاں عید الفطر ادا کی۔ مولانا عاطف ایوبی صاحب نے امامت کی اور خطبہ دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام صاحب کو، خطیب صاحب کو بہترین دعا کرنے کی توفیق عطا کی۔ یہاں آج سارے عالم سے اس وبا کو اٹھانے کے لیے دعا کی گئی، مرحومین کے لیے جو ہے نا مغفرت کی دعا کی گئی، امت محمدہ کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے عیدگاہ کمیٹی بھی دعا کرتی ہے کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس وبا کو عالم سے اٹھا دے۔ نماز عید الفطر ادا کی گئی عیدگاہ جدید میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، اور جو شاعر اسلام ہے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنا، وہ اللہ کے فضل سے تکمیل کو پہنچا ہے۔ امت المسلمین کو اس عید الفطر کی
मुबारकबाद कबूल फरमाइए। ये मौका तमाम इंसानियत के लिए नहायत ही कठिन है और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में ये जो वबा है ये मरहला हम सब के लिए एक मुश्किल मरहला है। तमाम ही लोग सादगी से ईद मनाइए और इस वबा को अल्लाह ताला तमाम जो इंसानियत से टाल दे, इसके लिए सब लोग दुआ करते रहें। और जो लोग इस दुनिया से गए हैं अल्लाह ताला उन तमाम को अपने जवार रहमत में जगह दे। इंशाअल्लाह उन तमाम हजरात के लिए शहीद का दर्जा है और ये एक बहुत ही मुश्किल मरहले से हम गुज़र रहे हैं। ऐसे तमाम ही लोग नहायत सादगी से ईद मनाएं और अल्लाह ताला से इस दुआओं को, इस वबा को टालने के, इस वबा को हमेशा ईद की खुशियां तकसीम करने वो अमन व अमान भाईचारगी का पैगाम, कड़ी धूप में अवाम की हिफाजत के लिए खिदमत अंजाम देने वाले महकमा पुलिस के मुलाजमिन में जमीयतुल उलमा हिंद शाख निजामाबाद की जानिब से शीर खुरमे की तकसीम। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर पुलिस इंतजामिया के लिए शीर खुरमा और पानी पिलाने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निजामाबाद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस्लाम ने अक़ूत व भाईचारे की अहमियत व ज़रूरत पर काफ़ी जोर दिया है। वही पैगाम अमन व मोहब्बत का संदेश देने के लिए हमने ड्यूटी पर मौजूद शहर के मुख्तलिफ चौराहों और पहरेदारी करने वाले बरदारान वतन पुलिस अमले को शीर खुरमा और पानी पिलाकर इनकी खिदमत का एहतराम किया गया। इसके साथ साथ अवामुन्नास अपील की गई कि वो अपने घरों में रहने को तरजीह दे, बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकले और कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए दी गई गाइडलाइंस और हिदायत पर अमल अवारी करते हुए महकमा पुलिस का ताउन करे। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, हाफिज नदीम, हाफिज इरफान, मोहम्मद अवैस शमसुद्दीन, MBM मोहम्मद वसीमुद्दीन, रेहान सईद ट्रेडर्स, वसीम अहमद खान सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौजूद थे। तमाम जमीयतुल उलमा निजामाबाद के अरकान मौलाना सैयद समीउल्लाह, इनायत अली फरोज, नसीरुद्दीन, लेक्चरार मौलाना इस्माइल आरफी ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बरदारान वतन ने ईद के मौके पर किए गए इस इक़दाम पर खुशी और मसरत का इजहार करते हुए सबको ईद की मुबारकबाद। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से आज ईद उल फितर के मौके पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ये पुलिस अमला और ये महकमा पुलिस जितना पब्लिक को और कौम को, मिल्लत को कोऑपरेट कर रहे हैं और उनके ताउन के लिए यहाँ पर धूप में और सुबह से लेकर शाम तक कर्फ्यू के औकात में लोगों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनका थैंक यू कहते हैं और अवामुन्नास से हम लोग ये अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी पुलिस का ताउन करिए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो पुलिस से मिलकर के सॉल्व करिए और लॉकडाउन के टाइम पर आप बाहर न निकलिए, घरों में रहें, सेफ़ रहें, महफूज रहें और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस वबाई मरज़ से हम सबको इंशाअल्लाह नजात मिल जाएगी। आज हम लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर इन अहबाब को खुशियों में शामिल करने के लिए जो इस्लाम का एक पैगाम है कि अपनों को भी और परायों को भी सबको साथ लेकर के खुशियाँ मनाना चाहिए, हम इन अहबाब के लिए शीर खुरमा और पानी वगैरह लेकर पहुँचे हैं और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें ईद की मुबारकबाद भी दी और वेलकम किया और हम लोगों ने ये जो सामान इनके लिए फराहम किया है उस पर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। हम भी तमाम ही अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक के जल्द से जल्द इस वबाई मरज़ से हम सबको, पूरी इंसानियत को, हिंदू आज ईद के मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद और ईदगाह कमेटी की तरफ से निज़ामाबाद के तमाम पुलिस वालों को मुँह मीठा कराया गया, पानी की सप्लाई दी गई और हौसला अफजाई की गई। निज़ामाबाद की आवाम से भी यही गुजारिश है, जितना हो सकता घर में महफूज रहिए, बाहर आइए मत, पुलिस वालों को परेशान कीजिए मत। जो है हमारा टाइम लिमिट, वो लिमिट से हट के बाहर आके परेशान होना नहीं, करना नहीं। सबको हमारी तरफ निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला की जानिब से कोरोना से मुतासिरा मरीजों और इनकी तीमारदारी करने वाले अफराद को 8वें दिन भी खाने की पैकेट्स की तकसीम जोरों शोर से जारी। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला ने कोरोना वबा की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफे के पेश नज़र कोरोना से मुतासिरा मरीजों और इनकी तीमारदारी करने वाले तकरीबन 1500 अफराद को 8वें दिन खाने के पैकेट की तकसीम जोरों शोर से जारी करने के अलावा शहर के अहम तरीन मुकामात जैसे विनायक नगर, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, खलीलवाड़ी, हमालवाड़ी, कंटेश्वर पर तकसीमी सेंटर मौजूद रखा गया और इस तरह से कोरोना वबा से मुस्बित पाए जाने वाले अफराद और इनकी खिदमतगार सुबह 10 ता 6 बजे तक कॉल सेंटर के फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा करने पर उन्हें
खाने के पैकेट की होम डिलीवरी की जाएगी। वज़ीर-ए-आला केसीआर और MLC के कविता ने दी अवाम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने ईद उल फितर के मौके पर अवाम को दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद अमन भाईचारे का दिन होता है। रियासत तेलंगाना में हर समाज की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। गुज़िश्ता 7 सालों में बेशुमार तरक्याती कामों का अंजाम दिया गया, मज़ीद तरक्याती कामों का अंजाम दिया जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से अवाम परेशान हाल है, तो दूसरी तरफ अवाम कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि रियासत में कर्फ्यू नाफिज है और महकमा सेहत की जानिब से घर घर फीवर सर्वे किया जा रहा है और अवाम को मुफ्त मेडिकल किट्स फराहम किए जा रहे हैं। MLC के कविता ने अपने प्याम में रियासत के मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और मुस्लिम भाइयों से खुसूसी दुआ में रियासत तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी और कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ की अपील की। ईद उल फितर के बाद तेलंगाना में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी। हैदराबाद में जगह जगह चेक पोस्ट, कमिश्नर्स को हुकूमत की हिदायत। ग्रेटर हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी के लिए पुलिस किसी कदर नर्म रवैया इख्तियार कर रही। ताहम ईद उल फितर के बाद लॉकडाउन के नफाज में सख्ती की जाएगी। बताया जाता है कि हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट्स को हिदायत दी गई है कि हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नरमी के औकात के दौरान तिजारती सरगर्मियों की फिल्मबंदी करे ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि तिजारती इदारे किस हद तक कोविड कवायद पर अमल कर रहे हैं। हैदराबाद में पुलिस की जानिब से 168 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं जो सुबह 10 बजे से दूसरे दिन भी सुबह 6 बजे तक काम करेंगे। कमिश्नर पुलिस अंजी कुमार के मुताबिक हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ और अशिया जरूरिया की सरबराही को लॉकडाउन से मुस्तस्ना रखा गया है। तरकारी और दूध की सरबराही में रियायत दी जाएगी। इन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी और अंदरून मुल्क सफर करने वाले अफराद वेब पोर्टल के जरिए ई पास हासिल कर सकते हैं। पुलिस की जानिब से अभी तक 700 से ज्यादा डिजिटल ई पासेस जारी की गई। इन्होंने कहा कि हंगामी खिदमात में इस्तेमाल किए जाने वाली अशिया की मुंतकिली के लिए गाड़ियों के पास की जरूरत नहीं रहेगी, ताहम गाड़ी के स्क्रीन पर अशिया की तफसीलात दर्ज करना होगा। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक हर चेक पोस्ट पर एक सब इंस्पेक्टर की क़यादत में स्टाफ को तैनात किया गया है। मरीजों की मुंतकिली और इनकी खिदमात अंजाम देने वालों को हॉस्पिटल के डिजिटल पास और दवाखाने के दस्तावेजात की बुनियाद पर लॉकडाउन में निकलने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी घूमने वाले अफराद की गाड़ियों को जब्त करने का हुक्म दिया गया है। तीनों कमिश्नरेट्स के तहत लॉकडाउन पर सख्ती से अमलवारी की मनसूबाबंदी की गई है। रियासत में फीवर सर्वे के चौंका देने वाले इंकशाफात। एक हफ्ते में 1.5 लाख अवाम में कोरोना की अलामतों की निशानदही, हालात इंतहाई संगीन। रियासत भर में फीवर सर्वे के चौंका देने वाले नताइज बरामद हो रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में 1.5 लाख लोगों में कोरोना की अलामतों की निशानदही की गई है। महकमा सेहत की जानिब से रोजाना बुलेटिन जारी करके जो कोरोना केसेस की तादाद बताई जा रही है वो अलग है। जिन लोगों में कोरोना की अलामतें पाई जा रही हैं इनमें कोरोना किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने रियासत भर में बुखार, सर्दी, खांसी से मुतासिर रहने वाले अवाम की निशानदेही करने के लिए मुख्तलिफ टीम्स तश्कील देते हुए घर घर सर्वे किया जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान जो सर्वे हुआ है इसमें 1.5 लाख अफराद में कोरोना की अलामतें पाई गई हैं, जो रियासत में हालात तशवीशनाक होने की निशानदेही करती है। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में 1064 मराकज़ की जानिब से मुफ्त कोरोना का टेस्ट किया गया है। पहले से ही टेस्टों की तादाद घटा दी गई है। लॉकडाउन नाफिज करने के बाद टेस्टों की तादाद मजीद घटाकर तमाम मराकज़ दिन में 11 बजे बंद कर देने की शिकायतें वसूल हो रही हैं। गुज़िश्ता माह रोजाना 1.20 लाख था, 1.30 लाख कोरोना टेस्ट किए गए थे। ताहम माह में रोजाना 60 था 90 हजार ही टेस्ट किए जा रहे हैं। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा,
कुर्ता पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के असम्बली मोड़ताड़ मंडल मौजा सुनकेड़ी सरपंच ने रोजगार तमानित स्कीम के कामों का मुशाहिदा करके लिया जायजा। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के असम्बली मोड़ताड़ मंडल मौजा सुनकेड़ी सरपंच श्रीनिवास ने देहात में जारी रोजगार तमाम स्कीम के कामों का मुशाहिदा करके जायजा लेते हुए कहा कि तमाम रोजगार तमाम स्कीम के कामों के पास चेहरे पर मास्क यकीनी तौर पर लगाने के साथ समाजी फासले पर अमल आवारी करके हर रोज सैनिटाइजर के जरिए हाथों को साफ सुथरा रखने के लिए मजदूरों को हिदायत दी। इन्होंने बताया कि अगर किसी को बुखार, सर्दी या खांसी के होने पर फौरी तौर पर आशा वर्कर्स को तफसीलात बताने के मुताबिक मजदूरों में शौर बेदारी अमल में लाते हुए बताया कि रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी काविशों के सबब कोरोना से मुतासिर मरीजों के लिए सरकारी हॉस्पिटल में तशफी बख्श इलाज फराहम करने का इंकशाफ किया। जिला निजामाबाद बालकोंडा मंडल मौजा डोंकल में जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक मुकामी सरपंच ने नायब सरपंच के हमरा घर घर सर्वे का इफ्तिताह अमल में लाया। जिला निजामाबाद बालकोंडा मंडल मौजा डोंकल में जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक मुकामी सरपंच लावनिया ने नायब सरपंच मलेश के हमरा सर्वे का इफ्तिताह अमल में लाते हुए आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स और ANM के साथ मिलकर घर घर का दौरा करते हुए अरकान खानदान के अलावा बच्चों से मुतालिक तफसीलात हासिल करके करीब में मौजूद गाँव के पास मुकीम अफराद को अमराज में मुब्तला न होने के लिए साफ सफाई अंजाम देने के साथ नालियों पर जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी GP मेमरान व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के असम्बली मोड़ताड़ मंडल मौजा शेटपल्ली में जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक ANM आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स की जानिब से घर घर सर्वे पर अवामी नुमाइंदों ने की इनकी मदद। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के असम्बली मोड़ताड़ मंडल मौजा शिटीपल्ली में जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक ANM आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स ने कोरोना वबा से मुतालिक घर घर सर्वे करने पर मुकामी सरपंच गंगा रेड्डी MPTC डॉक्टर श्रीनिवास ने सर्वे अहदेदारों की हर मुमकिना मदद फराहम करते हुए मुकामी अवाम को कोरोना वायरस से मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाने के साथ मुकामी अवाम को कोरोना वबा से बचाव के लिए COVID-19 प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने के लिए कहते हुए कहा कि अगर कोई कोरोना से मुतने पर खुद को होम क्वारंटाइन करके घर पर ही मौजूद होते हुए तिब्बी अमले के सलाह व मशवरे पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में सरपंच, नायब सरपंच, MPTC व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के असम्बली मोड़ताड़ मंडल सर्किल इंस्पेक्टर सुरेश ने मनसूबाबंदी के तहत लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के असम्बली मोड़ताड़ मंडल में कोरोना वबा की बहरान से मुतालिक जिला कलेक्टर व कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक मोड़ताड़ सर्किल इंस्पेक्टर सुरेश ने ASI पुलिस मुलाजमिन की हमरा मंडल के दीगर मुकामात के अलावा तमाम मौजात का दौरा करते हुए सख्त तरीन लॉकडाउन का निफाज अमल में लाते हुए अवाम को सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक जरूरी अशिया की खरीदी करने के दौरान पुलिस मुलाजमिन की जानिब से कड़ी निगरानी करते हुए ज्यादा हुजूम को जमा न होने दे और इस तरह से मोटरसाइकिल सवार अफराद के नजर आने पर उन्हें रोकते हुए कोरोना वबा से बचाव के मुतालिक जरूरी मालूमात फ्राहम करके उन्हें COVID-19 के उसूल व ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने का इज़हार करने के साथ कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए एहतियाती इक़दामात को रूबी अमल में लाने का इंकशाफ किया। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने कोरोना वबा से बचाव के लिए पुलिस मुलाजमिन में मास्क, सैनिटाइजर व ग्लव्स की तकसीम अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने आज कोरोना वबा से बचाव के लिए पुलिस मुलाजमीन को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की तकसीम अमल में लाते हुए बताया कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में बतदरीज इजाफे के पेश नज़र तमाम पुलिस मुलाजमीन इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत तमाम तरीन एहतियाती इक़दामात पर अमल करते हुए कोरोना वायरस से खुद को महफूज रखने के लिए COVID-19 प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर अमल करके एहतियाती तदाबीर के तौर पर चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले पर अमल करते हुए सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ग्लव्स का इस्तेमाल भी यकीनी तौर पर करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू, एडिशनल DCP श्रीनिवास कुमार, निजामाबाद ACP वेंकटेश्वरलू, ट्रैफिक ACP प्रभाकर राव व दीगर ने शिरकत की। सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और పబ్లిక్ की तरफ से आज अच्छा కోఆపరేషన్ సపోర్ట్ మిలా పబ్లిక్ నుంచి కూడా బాగా సపోర్ట్ మాకు వచ్చింది। 3 డే 3rd డే బందోబస్తు ప్రశాంతంగానే ఉన్నది।
ఈసారి పబ్లిక్తోనే డైరెక్ట్ ప్రతిరోజు మీడియా ద్వారా పబ్లిక్కి మేము ప్రతిరోజు సందేశిస్తున్నాము, డైలీ కాంటాక్ట్ చేస్తున్నాము, మెసేజ్ కూడా ఇస్తున్నాము. పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ కూడా బాగానే ఉంది. మా సిబ్బంది కూడా అంతా ఇప్పుడు కొంచెం ఎండ పెరిగింది కానీ ఎనీ వెదర్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, police department is always deployed. We are doing our best to control and this coronavirus and lockdown is successful so far and भविष्य కూడా ఇదే నేను ఆశిస్తున్నాను. सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हमारे को लॉकडाउन को कामयाब करने में हेल्प करेंगे. थैंक यू. రంజాన్ ఉండే కదా సార్, రంజాన్ కూడా ఎట్లా ఉంది? जैसा कि రంజాన్ సందర్భంగా ఆల్రెడీ కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్తోనే మాట్లాడడం జరిగింది, ప్రతి SHO లెవెల్లో, ప్రతి ఆఫీసర్ లెవెల్లో. ఈసారి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా పబ్లిక్ కోఆపరేట్ చేసినారు, కమిటీ నుంచి సపోర్ట్ వచ్చింది. సో దయచేసి మాస్ ప్రేయర్ చేయకండి, ఈద్గా కానీ మాస్ కానీ మాస్ नंबर्स కాకుండా మీ ఇంటిలోనే ప్రేయర్ చేయండి, अपने घर में बैठ के दुआ करिए, नमाज पढ़िए. रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद TRS सीनियर कायद गड्डम आनंद रेड्डी के सानहा इर्तिहाल पर इनके महमकीन खानदान को दिया पुरसा. रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज निजामाबाद TRS सीनियर कायद गड्डम आनंद रेड्डी के सानहा इर्तिहाल पर रंज व गम का इजहार करते हुए इनके महमकीन खानदान की हिम्मत अफजाई करते हुए इजहार ताज़ियत पेश की. निजामाबाद MLA बी गाला की जानिब से अवाम को ईद की मुबारकबाद. निजामाबाद MLA बी गाला ने अपने बयान में ईद के पुरमसरत मौके पर तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों में शहर निजामाबाद में मिसाली कामों को अंजाम दिया गया. शहर को मॉडल हल्के में तब्दील करने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे. निजामाबाद शहर में हर डिवीज़न में अवाम को बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी के लिए सड़कों की तामीर, ड्राइन की तामीर के अलावा हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाली स्कीमात पर 100% अमल आवारी की जा रही है. रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने अवाम से मुतालिक मसाइल को हल करके इनके दिलों पर गहरी छाप छोड़कर इनको अपना गुरवीता बनाया. रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने अपनी हरकयाती खिदमात से तमाम अवाम को अपना गर्विदा बनाते हुए इनसे मुतालिक मसाइल को दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर हल करके मोहब्बत का इजहार किया और इस तरह से गुज़िश्ता मुनक़िद करदा इंतखाबात में TRS कायदीन कारकुनान की जानिब से फराहम करदा खिदमात और इनकी कायदीन व कारकुनान के नामों की एक फहरिस्त बनाकर रजिस्टर में दर्ज करके इनके दिलों को फतेह करते हुए एक बेहतरीन मिसाल कायम करके एक बेहतरीन लीडर के तौर पर तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के दिलों में राज कर रहे हैं. हाल ही में एक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया. शहर के न्यालकल रोड पर PF के सामने एक कैदाई को देखकर नजर आने पर कार को रोककर इनसे मुलाकात करके तमाम अफराद को हैरत ज़दा कर दिया. मुल्क को कोविड वैक्सीन से ज्यादा फिरका परस्त के खात्मे की वैक्सीन की जरूरत. आज ईद के मौके पर भीमगल के एक नौजवान की जानिब से तौहीन आमेज पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने पर मुकामी कायदीन की जानिब से महकमा पुलिस में शिकायत दर्ज की और सख्त से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा. एक जानिब मुल्क कोरोना वायरस से परेशान है तो दूसरी जानिब के अफराद फिरका परस्ती के वायरस से मुतासर है, जिसकी ताज़ा मिसाल आज ईद उल फितर के दिन भीमगल में जहां एक नौजवान की जानिब से मुस्लिम तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर नशर किया गया, जिसको देखकर मुकामी अवाम ने मंडल के जिम्मेदारों तक पहुंचाया, जिस पर अंजुमन तंजीमुल मस्जिद एंड मदरसा दीनिया अरबिया भीमगल की जानिब से मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और वाज़ेह तौर पर जिम्मेदारों ने कहा कि आज कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन है, लेकिन इस तरह के शरपसंद अफराद की जानिब से की जा रही हरकत के सबब काफ़ी लोग दिल आज़ाद हो रहे हैं और इस तरह के मजहबी जज्बात की तौहीन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने इन्होंने मुतालबा किया. इस मौके पर ZPTC मोइस, सर्जिल, MPTC मुजाहिद, कोऑप्शन मेंबर मुस्तहसिन हुसैन, ताहिर हुसैन व दीगर मौजूद थे. एसआई साहब और पुलिस को जो है दरख्वास्त देके हम ये चाहते हैं कि ऐसी हरकत करने वाले मुजरिम को सजाए वाक़ई तौर पे सज़ा दी जाए. सख्त से सख्त सज़ा देने का हम पुलिस से दिया करते हैं, गुजारिश करते हैं. और इसी के साथ मैं हम तमाम भाइयों को खामोश रहकर किसी सूरत से क़ानून को अपने हाथ में न लेते हुए क़ानूनी तौर पे काम करने की मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ. यहाँ भीमगल और बापुर के ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं. हम आपको और हमारे अच्छे के लिए जो भी करेंगे आप लोग खामोशी से देखिए. गैर ज़रूरी गड़बड़ करने से और क़ानून को हाथ में लेने से मामला बनने के बजाय बिगड़ जाता. इसीलिए एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं और पुलिस अथॉरिटी से भी गुजारिश करता हूं कि मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़कर उसके ऊपर केस बुक किया जाए. खुदा हाफिज़.
एसआई साहब और पुलिस को जो है दरख्वास्त दे के हम ये चाहते हैं कि ऐसी हरकत करने वाले मुजरिम को सज़ाए वाक़ई तौर पे सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा देने का हम पुलिस से दिया करते हैं, गुजारिश करते हैं। और इसी के साथ मैं हम तमाम भाइयों को खामोश रहकर किसी सूरत से क़ानून को अपने हाथ में ना लेते हुए क़ानूनी तौर पे काम करने की मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ। यहाँ बेंगल और बापुर के ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं। हम आपको और हमारे अच्छे के लिए जो भी करेंगे आप लोग खामोशी से देखिए। गैर ज़रूरी गड़बड़ करने से और क़ानून को हाथ में लेने से मामला बनने के बजाय बिगड़ जाता। इसीलिए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के फर्जन टीआरएस सीनियर कायद आनंद रेड्डी के क़ल्ब पर हमले के बायस इंतकाल पर रियासती स्पीकर पोचाराम व दीगर वज़रा ने किया अफसोस का इजहार। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के फर्जन टीआरएस सीनियर कायद गड्डम आनंद रेड्डी का आज हैदराबाद में ज़ेर इलाज रहते हुए सुबह के अव्वलिन सातों में क़ल्ब पर हमले की बायस फौत होने पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा मेंबरान श्रीनिवास KR, सुरेश रेड्डी, MP धर्मपुरी अरविंद, BB पाटिल, ZP चेयरमैन विठल राव, निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली B काला, निजामाबाद रूरल रुकन असेंबली बाजूरी गोवर्धन, बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर, आर्मूर रुकन असेंबली POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने रंज व गम का इजहार करते हुए इस मौके पर दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि टीआरएस सीनियर कायद गड्डम आनंद रेड्डी कई कायदाना सलाहियतों की मालिक होने पर मुकामी व जिले अवाम में वो काफी मकबूलियत रखने का इंकशाफ। कोरोना वबा के सबब आज मुल्क के शहर के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अवाम एहतियात करे और ईद के मौके पर अल्लाह से दुआ करे कि दुनिया से कोरोना वबा का खात्मा हो जाए। डिवीजन 31 इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से कोरोना वबा लॉकडाउन के सबब नमाज ईद घर पर ही अदा करने की अपील पर अमल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन 31 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने अपने अफराद खानदान के साथ नमाज ईद घर पर ही अदा करते हुए जिक्र अस्कार, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ महफिल का एहतमाम करते हुए शुक्राना अदा की और अपनी ईद को सादगी के साथ मनाया। वाज़ के माह रमजान मुबारक में इनकी जानिब से कई कार खैर के काम अंजाम दी गई ताकि अवाम जो लॉकडाउन व कोरोना के सबब परेशान हाल में है इनकी ईद अच्छे से गुजर जाए। आज जो ईद उल फितर की नमाज जो आज ईदगाह में नहीं पढ़ाते हुए और जो सब मुसलमान भाई हर एक अपने अपने घरों में इबादत की, इसका और खुशी और अमन के साथ ईद मनाई गई और इंशाअल्लाह अब के साल ये कोरोना वबा की वायरस से बहुत आदमी मुतासिर हुए और इंशाअल्लाह अगले साल ये वबा को अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। जीवन रेड्डी शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स को राजेश्वर रेड्डी ने किया इफ्तिताह। जीवन रेड्डी की जानिब से शहर में क़याम अमल में लाए गए शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स को आज इनके भाई राजेश्वर रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते बताया कि इस शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स को बस स्टैंड के करीब कायम करने से तमाम अवाम के लिए काफी सहूलत बख्श होने पर खरीदारी करने में आसानी होने का इजहार किया। इस शॉपिंग मॉल में अवाम से मुतालिक जरूरी चीजों के अलावा दीगर सहूलतें भी मौजूद होने का इंकशाफ। నిత్యావసర సరుకులన్నీ సరసమైన ధరలకే అంటే ఎక్కడ లేని విధంగా మంచి అందుబాటు ధరలో అన్ని సామాన్లు కూడా అన్ని సరుకులు కూడా ఒకే దగ్గర మనం కొనుక్కునేటట్టు వీలుగా మరి ఈరోజు జీవన్ రెడ్డి మాల్లో ఈ యొక్క ఎస్మార్ట్ను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। మరి ఇంత గొప్పగా మరి ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా ఇంత మంచి సౌకర్యాన్ని కల్పించినందుకు ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారికి అదేవిధంగా రిలయన్స్ వారు ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా ఏ గ్రామీణ इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन के रियायती वक्त में कारोबार खुलेआम, लेकिन नमाज ईद के लिए मसाजिद व ईदगाह पर पेश से अवाम ने की घरों में नमाज ईद अदा। तो मुल्क की तरक्की के लिए कोरोना वबा के खात्मे के लिए की गई दुआएं। कोरोना के कहर में भी चंद नादान नहीं सुधरे। भीमगल में ईद के दिन मुसलमानों का दिल आजारी के लिए सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट, मुकामी कायदीन की जानिब से महकमा पुलिस की शिकायत दर्ज व सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील।
ईद उल फितर के मौके पर रियासती वज़ीर आला KCR, असम स्पीकर पोचराम, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी, MLC के कविता, रुकन असम्बली शकील आमिर व दीगर ने दी मुबारकबाद। ईद के मुबारक मौके पर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से महकमा पुलिस मुलाजमीन में शीरखुरमे की तकसीम व इनकी बेलोस खिदमात की सताइश। कोरोना वबा के मद्देनजर पेश आए हालात पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ किया तबादले ख्याल। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।